Right, so this is Rapid Fire with Divyansh, and the topic we are starting with is acute kidney injury. So, what is acute kidney injury? It is sudden decrease in the renal function, which we can assess by the serum creat level. Agar this is getting more than 0.3 mg per dl within 48 hours, or it is getting 1.5 times the baseline, whatever was the baseline data for creatinine 7 days back, right? So that is one criteria. Or you can assess by urine output. So if the urine output is less than 0.5 ml per kg per hour for 6 hours, this is your acute kidney injury. Now, how are we going to classify this? So there are basically three types. Okay. So either the pathogenesis can be pre-renal, मतलब kidney से पहले हुआ है, kidney से पहले the reasons can be dehydration or the volume depletion. Second reason can be heart failure. So heart is not pumping enough blood into the kidneys. Other reason can be hepatorenal syndrome, है ना? And most important cause of hepatorenal syndrome is liver cirrhosis. Then there can be the drugs like NSAIDs. Then ACE inhibitors, another drug. So, what are the findings which you are going to find in these prerenal case? So, first of all, fractional excretion of sodium is going to be less than 1%. Then, one, blood urea nitrogen to creatinine ratio has to be 20 is to 1. And my friends, if you are looking at this 1 to create ratio and it is more than 20 is to 1, trust me, you are going to find this very finding in almost 80% of the questions. And as soon as you look at this 1 to create ratio of more than 20, and how are you going to see it? He is going to write maybe like this, that 1 is 200 and your create is like 10. So 200 by 10 and this is 20. So that's how you are going to look at it, and trust me, it is going to solve you a lot many questions than you can possibly imagine. So that is your first MCQ. Mark it. Then second is urine osmolality more than 500. Then when you look at the sediment, okay, so it is going to be a bland sediment at the base of urines. Okay. Then is it reversible? So yes, this is very much reversible. In fact, whole of the AKI carries very much a good prognosis. Then let us come to the second type of AKI, which is the intrinsic. Intrinsic का मतलब किडनी के अंदर इंजरी हो गया है. How can it happen? So, firstly, either it could be ATM, means acute tubular necrosis. नेक्रोसिस कब होगा? या तो किडनी को जहर देके मार दो, माने टॉक्सिन दे दो, या फिर उसका गला घोट के मार दो, माने इश्चीमिया कर दो. And what are the drugs associated with this? Aminoglycosides and contrast. Contrast, are we talking about contrast induced CT वाला contrast? Yes, very much. Then, इसके अंदर फाइंडिंग्स क्या होगी? जब आप माइक्रोस्कोपी में देखोगे तो मडी ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट दिखेगा आपको. Then फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम की अगर आप बात करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी मोर देन 2%. यूरिन ऑस्मोलैरिटी इज गोइंग टू बी लेस देन 350. देखिए इधर अगर डिहाइड्रेशन वाला प्री रीनल हाइपोपरफ्यूजन वाला देख रहे थे, द यूरिन ऑस्मोलैरिटी वाज मोर देन 500. Why? Because it is a concentrated urine. But in this case, the urine osmolarity is less than 350. माने it is a dilute urine, right? Why dilute? Because किडनी तो मर चुकी है, अब वो काम ही नहीं कर रही. किडनी का काम क्या होता था? कॉन्सेंट्रेट करना. ठीक है, अब वो कॉन्सेंट्रेट कर नहीं रही है, हेंस द डाइल्यूट यूरिन. एंड अगर आप बात करें उधर 1 टू क्रिएटिनिन रेशियो था मोर देन 20, बट हियर इट इज गोइंग टू बी लेस देन 15. दैट इज योर अनदर क्लू कि ये प्री रीनल टाइप का रीनल फेलियर है या इंट्रिंसिक वाला है. देन ये तो हो गया हमारा पहला एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस. देन सेकंड टाइप पे आ जाते हैं एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस. अगेन इट कुड बी एन इम्यून फिनोमिना और इट कुड बी कॉज्ड बाय ड्रग्स. देन इसके साथ में आपको मिलेगा ट्रायड. दिस इज योर सेकंड एमसीक्यू of this session. Fever, rash, eosinophilia. Mind it, fever, rash, eosinophilia. और साथ में what was the definition of AKI? Reduction in the urine output. Yes, अगर ये मिल गया भाई आंख बंद करके, your answer is intrinsic type of renal failure. Okay, then इसमें अदर जो आपके फाइंडिंग्स होंगे, आपको यूरिन में WBC के कास्ट मिलेंगे, स्टीराइल पाईयूरिया मिलेगा, माने के बैक्टीरिया नहीं है यूरिन के अंदर, बट पस सेल्स प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है, साथ में इयोसिनोफिल्स आपको बढ़े हुए मिलेंगे. देन तीसरा टाइप हम बोल सकते हैं ग्रैनुलोनेफ्राइटिस में भी हो सकता है इंट्रिंसिक फेलियर. देन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की जब आप बात कर रहे होते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट आरबीसी का कास्ट मिलेगा, प्रोटीन यूरिया मिलेगा,
हाइपरटेंशन आपको मिल सकता है, राइट? ये जो मेन हमारा एक सीक्वेंस होता था किसी भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सिंड्रोम्स का, या देन फोर्थ टाइप इसके अंदर भी है वेस्कुलर, जिसके अंदर आपका आ सकता है वेस्कुलाइटिस या फिर टीएम। ओके, देन नेक्स्ट की बात कर लेते हैं पोस्ट रीनल, माने के रीनल, इफ दिस वाज द किडनी, यहाँ से खून आ रहा था, यहाँ से निकल रहा था, तो यहाँ वाला हमने पढ़ लिया कि ये किस में हो रहा था, जबकि खून सही से आ नहीं रहा है, हार्ट फेल हो गया, लिवर की वजह से खून नहीं आ रहा है, या फिर आपका डिहाइड्रेशन में हो रखा है। किडनी के अंदर की बात करें, किडनी के सेल्स को डैमेज हो गया। अब बात की बात कर रहे हैं तो बाद में क्या हो सकता है? सबसे आसान चीज क्या है कि पत्थर आगे टक जाए रास्ते में, या फिर कोई और सी चीज आ जाए। मर्दों की बात करेंगे तो प्रोस्टेट की बात कर लेंगे यहाँ पे, राइट? सो सबसे आसान चीज क्या है? बीपीएच हो जाना, देन आपका स्टोन्स हो जाना, देन आपका ट्यूमर्स हो जाना, या फिर न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाना, कि ब्लैडर ही बंद हो गया है, वो खुल ही नहीं रहा है, तो वो पेशाब नहीं आ रहा है, तो अब ऊपर को बैक फ्लो चेंजेस लग रहे हैं एंड गई किडनी काम से। या सो अल्ट्रासाउंड के ऊपर in this post-renal type, you are going to find hydronephrosis. So whenever a renal stone का patient is coming to you, उसका किडनी आपको swelled up मिलेगा। आपको यूएसजी का उसमें क्वेश्चन में मिल जाएगा कि इसका जो किडनी है इसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस है और there is fluid collection around the kidneys. Hence, this is the post-renal type. Initially, it is going to be polyuric type and later it is going to be the oliguric type. मतलब स्टार्टिंग में जब वो पुश नहीं कर पा रहा है यूरिन को, तो किडनी और ज्यादा यूरिन बनाई जा रही है कि भाई किसी तरीके से धक्का मार के इस यूरिन को निकालो, बट देन आगे तो ऑब्स्ट्रक्शन है। लास्ट में जाके क्या होगा? किडनी का गला उठ जाएगा। किडनी का गला उठ जाएगा तो क्या होगा? वो काम करना बंद कर देगी एंड देन लास्ट में क्या होगा? ओलिग्यूरिक टाइप ऑफ यूरिन, सॉरी ओलिग्यूरिक टाइप ऑफ फंक्शनिंग आपको किडनी की दिख जाएगी। अब ओवरऑल व्हाट आर द chief causes of acute kidney injury? We can remember this by this Vanish mnemonic. So V for volume depletion or dehydration, A for aminoglycosides or acute interstitial nephritis, N for NSAIDs or nephrotoxins, I for ischemia, S for sepsis, H for hyperuricemia, hemolysis, और अगेन हाइड्रेशन की कमी या पानी की कमी। देन जो क्लासिफिकेशन होता है, जो स्टेजिंग होता है एकेआई का, दो इसमें चलते हैं। एक चलता है केडी आईगो क्राइटेरिया और एक चलता है हमारा राइफल क्राइटेरिया। राइफल का डेफिनेशन, सॉरी फुल फॉर्म अगर मैं बोलूं तो रिस्क, इंजरी, फेलियर, लॉस ऑफ फंक्शन एंड देन एंड स्टेज, हेंस राइफल। और जबकि केडीगो के होते हैं 3 स्टेजेस, 1 2 3। सो है, लेकिन इसके अंदर का सब कुछ कॉमन। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो अगर क्रिएटिनिन का वैल्यू is more than 0.3 mg per dl or it is 1.5 to 1.9 times the baseline, and again we were talking about कितना baseline, कब का? at least एक वीक पहले का, से 1.5 to 2 times बढ़ गया है, इसका मतलब है कि ये स्टेज 1 है। एंड यूरिन आउटपुट का इसमें क्या रहेगा? वही जो हमने भी डेफिनेशन में पढ़ा था, लेस देन 0.5 ml per kg per hour फॉर मोर देन 6 hours, राइट? सो दिस इज योर स्टेज 1। स्टेज 2 की अगर हम बात करते हैं, सो 2 इज सिंपल। सो क्रिएटिनिन का वैल्यू 2 से लेस देन 3 अगर है टाइम्स द बेसलाइन, या फिर यूरिन आउटपुट अगेन 6 का इंटू 2 कर दीजिए, 12 घंटे से ज्यादा 0.5 से कम है, तो दिस इज योर स्टेज 2। स्टेज 3 की बात करेंगे या फेलियर की बात करेंगे, अगेन 3 टाइम्स या उससे ज्यादा अगर आपका बेसलाइन से क्रिएटिनिन बढ़ गया है और उसका रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी माने डायलिसिस शुरू हो गया है, और 3 अगेन 3 लेस देन 0.3 ml per kg per hour से कम का यूरिन आउटपुट है फॉर मोर देन 24 आवर्स, दिस इज योर स्टेज 3। देन लॉस ऑफ फंक्शन आपका बोलेंगे जब उसका डायलिसिस को 4 हफ्ते हो चुके हैं, दिस इज योर लॉस ऑफ फंक्शन। एंड स्टेज का बोलेंगे जब 3 महीने से डायलिसिस चल रहा है और कोई सुधार नहीं है, दिस इज योर लास्ट stage of AKI. Now, how are we going to manage this patient? So, management is always going to be supportive. So, supportive से हमारा क्या मतलब? कि किडनी का परफ्यूजन प्रॉपरली होना चाहिए, माने कि इसको आपको फ्लूइड ओवरलोड से तो बचाना है, बट एट द सेम टाइम आपको चेक करना है कि कहीं ये डिहाइड्रेटेड तो नहीं है बंदा, तो आपको आईवी फ्लूइड तो सबसे पहले देना ही पड़ेगा। बट देन इतना जो हमने समझा, तो हमको ये बात तो समझ में आई कि इट इज अ टॉक्सिन और अ ड्रग जो कि मोस्ट कॉमनली एकेआई कर रहा होता है। सो सबसे पहली बात क्या है कि आपने आईवी, डबल आईवी उसको फ्लूइड दिया, उसको रिहाइड्रेट किया। अब सबसे पहले जो वो ड्रग ले रहा है या फिर जो कि इंजरी करने वाला या फिर इंसल्टिंग एजेंट है, आपको उसको रोकना होगा। सो व्हाट आर द ड्रग्स जो कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं एकेआई के अंदर? सो दीज आर एबीसी। एस माने के ए फॉर एस्पिरिन, बी से बीटा ब्लॉकर्स, सी से क्लोपिडोग्रेल एंड एस से स्टैटिन्स।
right? So these are the drugs that we can continue. Obviously, paracetamol is a very common drug, so you can continue in AKI. Then what are the drugs जो के stop करना है? So एस्पिरिन के अलावा बाकी सभी एनएसएड्स को स्टॉप करना है, एंड हमने ऊपर पढ़ा भी है वेनिश निमोनिक के अंदर कि फॉर एनएसएड्स एंड नेफ्रोटॉक्सिन्स आर गोइंग टू कॉज AKI. So we have to stop these drugs. Then aminoglycosides, AC inhibitors, is angiotensin receptor blockers and diuretics, all the drugs causing dehydration, you have to stop. Then what are the drugs which have to be stopped in case of toxicity? अगर toxicity हो रखी है तो we have metformin, lithium and digoxin. ओके, देन हमेशा याद रखेंगे कि सीकेडी के अंदर, क्रॉनिक किडनी डिजीज के अंदर हम डायूरेटिक्स देते थे, लूप डायूरेटिक्स देते थे, बट एकेआई के अंदर लूप डायूरेटिक्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड. व्हाई? बिकॉज एकेआई का सबसे कॉमन जो पैथोजेनेसिस है दैट इज डिहाइड्रेशन, एंड लूप डायूरेटिक्स आर गोइंग टू कॉज यू डिहाइड्रेशन. ओके, व्हाट एल्स? देन लो डोज डोपामीन इज आल्सो नॉट गिवन इन दिस केस. ओके, देन अब बात करेंगे हम हाइपरकैलेमिया. जब किडनी फेलियर की बात करेंगे तो द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट इन ब्लड इज हाइपरकैलेमिया. सो सबसे पहली बात कि हाइपरकैलेमिया में आपको खतरा किस चीज से कि कार्डियक अरेस्ट ना हो जाए. सो यू हैव टू स्टेबलाइज द कार्डियक मेम्ब्रेन्स. फॉर दैट यू हैव टू तुरंत से गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो कि शिफ्ट कर देगा पोटेशियम को फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस टू इंट्रासेलुलर स्पेस. ओके, देन उसके साथ में जो एक्स्ट्रा आपका पोटेशियम है उसको आपको बाइंड करना है. सो और साथ में आपको जितना आप मैक्सिमली उसको अंदर कर सकते हैं सेल के, वो करना है. सो स्टार्ट हमने किया कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ में. देन यू हैव टू गिव इंसुलिन विद डेक्सट्रोज, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, पोटेशियम को ईसीएफ से, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में डाल देता है. सेम इज द फंक्शन ऑफ सेल्ब्यूटामॉल. सेल्ब्यूटामॉल भी इस पेशेंट को दिया जा सकता है. देन आपको बाइंड करना है एक्स्ट्रा पोटेशियम. सो उसके लिए आपको कैल्शियम रिजोनियम देना है इन फॉर्म ऑफ एनीमा, और आप ओरल टैबलेट्स दे सकते हैं. साथ में देना है यहाँ पर लूप डायूरेटिक्स. जब सब कुछ पेशेंट को बचा लिया उसके बाद में देयर इज सम रोल ऑफ लूप डायूरेटिक्स, एंड लास्ट में अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है पेशेंट का तो आप डायलिसिस नहीं करो. ऑलराइट, देन जब एक पेशेंट जो कि सीकेडी का है और माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरकैलेमिया में है, जो कि एसी इनहिबिटर्स की वजह से ही हो सकता है, इस पेशेंट को पहले आप डाइटरी मॉडिफिकेशन से एंड ओरल कैटाइन एजेंट्स लाइक पेटिरोमर या फिर जिरकोनियम साइक्लोसिलिकेट के साथ ट्रीट करेंगे बिफोर गोइंग फॉर एनी मोर एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स लाइक इंसुलिन और डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन. सो काफी सारे क्वेश्चंस में, ये आपका थर्ड एमसीक्यू है, काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर एसी इनहिबिटर्स या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की आपको हिस्ट्री दे रखा होगा. पेशेंट का क्रिएट बढ़ रहा होगा, उसका जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो रहा होगा, और आपसे पूछेगा कि इसमें क्या करना चाहिए. सो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि अप टू 25% इन द बेस लाइन इज नॉर्मल विद एसी इनहिबिटर्स एंड एआरबीज. इसमें कुछ नहीं करना है, केवल डाइटरी मॉडिफिकेशंस करने हैं. हाँ, अगर वो चेंज 25% से ज्यादा का है, द चेंज इज मोर देन 25%, इट इज देन दैट यू आर गोइंग टू गो फ्रॉम these dietary changes to the like more serious treatment like this or this. All right, then last में जब कुछ ना हो, जिसका कुछ नहीं हो पाता उसका डायलिसिस हो जाता है. so जिसका कुछ नहीं होगा उसके लिए डायलिसिस में जाएंगे, वो चाहे हीमोडायलिसिस करो या पेरिटोनियल डायलिसिस करो. मोस्ट कॉमन डायलिसिस इज योर हीमोडायलिसिस. all right, this is done when the patient is not responding to the medical treatment of the complication. all right, जैसे कि हाइपरकैलेमिया उसका नहीं कंट्रोल हो रहा है, या फिर पल्मोनरी एडिमा जिसको फ्लैश एडिमा कह देते हैं, उसमें पेशेंट एंड अप कर गया है, या फिर उसको एसिडोसिस है या यूरेमीमिया है जिसके वजह से उसको पेरिकार्डाइटिस एंसेफेलोपैथी हो रहा है, मतलब कॉम्प्लिकेशंस बढ़े जा रहे हैं. अगर आप नहीं रोक पा रहे हो तो आप क्या करोगे लास्ट में जाके? आप डायलिसिस करोगे. ठीक है ना? व्हाट आर द केसेस जिसमें कि आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास में रेफर कर देना है पेशेंट? These cases are renal transplant का अगर कोई पेशेंट आ रहा है इन AKI, या फिर अननोन कॉज ऑफ AKI है, या फिर वेस्कुलाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस या माइलोमा का पेशेंट है, या फिर इनएडिक्वेट रिस्पांस दे रहा है ट्रीटमेंट को, आपके औकात से बाहर का हो रहा है उसका ट्रीटमेंट. देन या फिर कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं AKI के. अगेन क्या कॉम्प्लिकेशंस थे? फ्लैश एडिमा जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइपरकैलेमिया, एसिडोसिस, यूरेमिया जिसकी वजह से आया पेरिकार्डाइटिस या इंसेफेलोपैथी, ये सब आ रहा है, रेफर कर दीजिए. स्टेज 3 में आ गए हैं. स्टेज 3 का मतलब ही क्या था कि आप पेशेंट डायलिसिस में जाने वाला है, रेफर कर दीजिए. सीकेडी के स्टेज 4 या फिर 5 माने गए, जो कि आपका एल एंड ई था, राइफल का एल एंड ई माने लॉस ऑफ फंक्शन एंड स्टेज वाला, रेफर कर दीजिए. या फिर वो पेशेंट डायरेक्टली इज क्वालिफाइंग फॉर रीनल ट्रांसप्लांट. ओके, देन
सॉरी रीनल रिप्लेसमेंट या फिर रीनल ट्रांसप्लांट, देन अगेन रेफर कर दीजिए. ऑलराइट, लेट अस टॉक अबाउट some miscellaneous topics associated with the AKI. So first of all, थोड़ा डीप में पढ़ेंगे acute tubular necrosis के बारे में. etiology क्या है? Mostly ischemic, किडनी की हत्या हो चुकी है, किडनी हैज डेड, मतलब पूरा नहीं, उसका कुछ सेल्स. सो कैसे हो सकता है? either the patient was in shock or the sepsis, so the patient, जो पेशेंट का किडनी है वो ischemic हुआ, and then हुआ क्या, अब उसकी हत्या हो चुकी है. और क्या कर सकते हैं? या फिर आपने कुछ जहर दे दिया उसको, जहर मन नेफ्रोटॉक्सिन्स लाइक एमिनोग्लाइकोसाइड्स, कंट्रास्टर, मायोग्लोबिन, या फिर लेड. सो आ सकता है कि कोई पेशेंट हो जिसके अंदर लेड पॉइजनिंग की हिस्ट्री हो, कि उसके अंदर क्या है, उसके किडनी में आपको दे रहा है कि वो मड ब्राउन कास्ट है, दिस इज योर एटीएन. या फिर आपको बोलेगा कि एमआरआई कराया गया था उसका, या फिर कोई रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ था, सीसीटी हुआ था, सीटी स्कैन लिखेगा, वो नहीं बताएगा सीई है, उसके अंदर कंट्रास्ट है. आपको दिमाग से सोचना है, अगर उसका सीटी स्कैन हुआ है, कोई भी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ है, देन वेरी मच इट इज पॉसिबल कि इस पेशेंट को क्या दिया गया होगा, इस पेशेंट को दिया होगा एक कंट्रास्ट, एंड अब ये पेशेंट हैज एंड अप इन this acute tubular necrosis. So let us come to the next thing. Okay, what are the phases of acute tubular necrosis? First of all, first phase is going to be oliguric. दूसरा is going to be polyuric. जब polyuric हो जाएगा, हद से ज्यादा उसको सुसु आएगा, क्योंकि अब जो उसकी किडनी है वो हमने बताया क्या था स्टार्टिंग में, कॉन्सेंट्रेट तो नहीं कर पा रही थी. सो हाइपोवोली में भी पेशेंट चला जाएगा, हाइपोकली में भी पेशेंट चला जाएगा. थर्ड स्टेज में अगर आपने पेशेंट को संभाल लिया तो रिकवरी हो गई. लैब्स में हमने बताया था फीना जो था, फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम वाज मोर देन 2%. जो यूरिन सोडियम था, इट विल बी मोर देन 40. मडी ब्राउन कास्ट था, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी थी, एंड इफ यू कैन रिकॉल जो बन टू क्रिएट रेशियो था, व्हाट वाज दैट? वाज इट मोर देन 20 और लेस देन 15? दिस वाज लेस देन 15. ओके, देन let us come to acute interstitial nephritis. Causes are FANS, PVR. Then F for furosemide, A for allopurinol, N से NSAIDs, L for S से sulfa drugs जैसे कि cotrimoxazole, S another S stands for sarcoidosis, Sjogren's या फिर SLE. Then आता है आपका P से penicillin, vancomycin and rifampicin. So PVR are the three drugs. उसके अलावा जो other drugs हैं वो है FAN और SS से अगर हम बात करें, so these are your autoimmune conditions जिसके अंदर के क्या हो सकता है, acute interstitial nephritis हो सकता है. तो हमेशा अगर कोई आपको autoimmune condition जैसा कोई पेशेंट आ रहा है और उसमें आपको रिडक्शन इन द यूरिन आउटपुट दिख रहा है या AKI जैसा फीचर दिख रहा है, so always remember this is going to be acute interstitial nephritis. हमेशा याद रखिए कि acute interstitial nephritis होगा अगर कोई rheumatoid disease वाला पेशेंट आ रहा है. तो what are the features in the AIN? फीचर्स होंगे fever, rash, eosinophilia. Okay, and the eosinophilia is less than seen in less than 10% of the patient, but mind it, जो आपको MCQ देगा वो AIN का उसे पूछना होगा, तो आपको जरूर वो 90% से ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर eosinophilia देगा. उसके अलावा the other features will be of rheumatoid disease जैसे कि arthralgia, malaise, hypertension. ओके, इन्वेस्टिगेशंस आप करेंगे तो क्या मिलेगा? स्टीराइल पायूरिया, माने कि पस में यूरिन के अंदर बैक्टीरिया नहीं है, पर यूरिन के अंदर पस या फिर न्यूट्रोफिल्स मिल रहा है. WBC इओसिनोफिल कास्ट मिल रहा है, यूरिन के अंदर भी इओसिनोफिल्स मिल रहा है. बायोप्सी आप कराएंगे तो इंटरस्टिशियल एडिमा मिलेगा, इन्फिल्ट्रेट्स मिलेगा. ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल, जस्ट स्टॉप दीज ऑफेंडिंग ड्रग्स, एंड इफ इट इज सीवियर यू गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. अगर उससे भी बात ना बने तो डायलिसिस कर दीजिए. ओके, देन लेट अस टॉक अबाउट renal tubular acidosis, RTA. This is your fourth MCQ, and trust me, इस टेबल के बिना आपका कोई भी किसी भी टाइप का पेपर, कोई भी एमसीक्यू पेपर नहीं बनेगा. बीट नीट पीजी, बीट INI, बीट यूएसएमएलई, बीट प्लैब, बीट MRCP, कोई भी एग्जाम इस टॉपिक के बिना अपना पेपर नहीं देगा. दिस इज योर शॉर्ट दैट वन क्वेश्चन जो कि आएगा ही आएगा. सो ध्यान से सुनो. चार टाइप के आपके मिलेंगे जो है आपके RTA. सो सबसे पहले वाले को बोलते हैं डिस्टल, दूसरे वाले को बोलते हैं प्रॉक्सिमल, और जो लास्ट वाला है आपका जो फोर्थ टाइप है इंपॉर्टेंट, दैट इज योर कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट. सो पहले वाले में दिक्कत क्या हुई कि जो हाइड्रोनियम आयंस का सिक्रीशन था वो कम हो गया. हेंस जब हाइड्रोनियम आयन निकलेगा नहीं, हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, तो शरीर के अंदर क्या हो जाएगा? पीएच कम हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा. देन दूसरी बात करते हैं कि जो बाइकार्बोनेट था उसका रिजॉर्प्शन हो गया, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है. अगेन बाइकार्बोनेट इज एल्कली, एल्कली शरीर से बाहर जा रही है, अगेन एसिडोसिस हो गया. तीसरी चीज जो लास्ट में हुआ, एल्डोस्टेरोन
कम हो गया। और जब हमको पता है कि एल्डोस्टेरोन भी अगर कम हो जाता है तो अभी से याद रखते हैं कि जो बॉडी होगी इट विल एंड अप इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हमेशा याद रखिए कोई भी आरटीए का अगर पेशेंट है इट इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल एनायन गैप वाला एसिडोसिस। व्हाई? बिकॉज हमको पता है कि एनायन गैप जो होता था आपका, एनायन गैप यूज्ड टू बी सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस क्लोराइड माइनस बाइकार्बोनेट। क्या इसके अंदर कहीं से कहीं तक भी हाइड्रोजन आयन है? ओके। और अगर बाइकार्बोनेट भी कम होता है तो इतना ज्यादा कम नहीं होता है कि वो एक एनायन गैप क्रिएट कर पाए। तो अब अगली बात कर लेते हैं, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ टाइप 1 आरटीए। टाइप 1 आरटीए के मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं एक रीनल स्टोन, नेफ्रोकैल्सिनोसिस, या फिर एल्कलाइन यूरिन के कॉजेज। मानी यूरिन के एल्कलाइन किस में हो जाएगा? एसएलई में हो जाएगा, जॉगरेंस में हो जाएगा, एम्फोटेरिसिन बी जो एक हमारी एंटी फंगल ड्रग है उसमें भी हो जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे आपसे कि जो भी ऑटो इम्यून डिजीजेस हम रोमेटॉइड रूमेटोलॉजी में पढ़ते थे उन सब के अंदर कौन सा वाला आरटीए होगा? आरटीए टाइप 1। और जब हमने बोला आरटीए टाइप 1 तो बाय डिफॉल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अ सीकेडी और एकेआई। वी आर टॉकिंग अबाउट एन एकेआई। क्या एकेआई कॉम्प्लिकेट होके सीकेडी बना सकता है? यस। सो टाइप 1 आरटीए, एकेआई, सीकेडी, तीनों स्पेक्ट्रम बनाते हैं रूमेटोलॉजिकल डिजीजेस का। दूसरे टाइप के हम बात करते हैं आरटीए टाइप 2 की। इट इज सीन इन ऑस्टियोमलेशिया, फैंकनीज डिजीज, विल्सन्स डिजीज, सिस्टिनोसिस एंड कैल्शियम एनहाइड्रेज के इनहिबिटर्स। ठीक है। Then, अगली बात कर लेते हैं, लास्ट जो हमारा टाइप 4 वाला था। दिस इस केस में अगर आप देख पा रहे हो कि अभी तक जो हमने टाइप 1 टाइप 2 देखा दोनों के अंदर पोटेशियम की वैल्यू कम हो रही थी, बट टाइप 4 वाले में द पोटेशियम इंक्रीजेस। 4 वाले में पोटेशियम इंक्रीजेस। सो फीचर्स क्या रहेंगे? हाइपरकेलीमिया मिलेगा आपको, देन एसिडिक यूरिन मिलेगा आपको, देन इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं? डायबिटीज होते हैं, हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म में भी ये देखने को मिलता है। सो अब हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि जो टाइप 2 है उसके अंदर फैंगनीज सिंड्रोम मिलता है। सो व्हाट इज फैंगनीज सिंड्रोम? फैंगनीज सिंड्रोम के अंदर आपको टाइप 2 आरटीए तो मिल रहा है, साथ में मिलेगा फॉस्फेटूरिया, मतलब कि यूरिन के अंदर फॉस्फेट बढ़ा हुआ है, ग्लाइकोसूरिया, यूरिन के अंदर आपका ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, एमिनो एसिड्यूरिया, ठीक है, एमिनो एसिड्स भी रिलीज हो रहे हैं। दिस इज सीन इन सिस्टिनोसिस, विल्सन्स एंड मल्टीपल माइलोमा जो हम बात कर चुके हैं। देन हमने बोला कि एक चीज होती है रैप्डोमायोलिसिस। रैप्डोमायोलिसिस हमने जो पढ़ा था ऊपर थोड़ी देर पहले, वो पढ़ा था हमने एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कराता है, एटीएन कराता है। तो कभी बार आपके पास में हिस्ट्री मिलेगी पेशेंट को सीजर आया, पेशेंट जमीन पे गिर गया, उसके बाद में उसकी किडनी फेल हो गई, या फिर मडी ब्राउन पास मिला, या कोला टाइप यूरिन मिला, एकदम काला सा यूरिन। सो व्हाट इज दिस? These all are the clues to rhabdomyolysis. So सीजर का हिस्ट्री हुआ, ट्रॉमा का हिस्ट्री हुआ, स्टैटिन यूज का हिस्ट्री हुआ, क्लेथ्रोमाइसिन का हिस्ट्री हुआ, क्रश इंजरी हुआ, सब में क्या है? rhabdomyolysis में क्रिएटिनिन सी के क्रिएटिनिन काइनेज की वैल्यू आपकी मोर देन 5000 मिलेगा, हाइपरकैलीमिया मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया मिलेगा, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया मिलेगा, मायोग्लोबिन न्यूरिया मिलेगा जिसमें क्या बोलेगा टी कलर्ड यूरिन मिल जाएगा आपको। कॉम्प्लिकेशन क्या है? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा, और जब एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा तब हमने क्या बोला? बड़ी यूरिन मिलेगा या फिर एकदम काला यूरिन उसको मिलेगा। ट्रीटमेंट इज आईवी फ्लूइड्स, जो कि हम बार बार बोलते आ रहे हैं, होना तो सब चीजों का ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ही है देखिए, और साथ में करना पड़ेगा आपको यूरिन का एल्कलाइजेशन, एंड वी हैव टू अवॉइड ऑल द अदर नेफ्रोटॉक्सिन्स। देन लेट अस टॉक अबाउट पेपिलरी नेक्रोसिस। पेपिलरी नेक्रोसिस के कॉजेस होते हैं एनएसएड्स, डायबिटीज मेलाइटिस, सिकल सेल एनीमिया, पाइलोनेफ्राइटिस, टीबी। माइंडेड, सिकल सेल एनीमिया का बच्चा, पाइलोनेफ्राइटिस का पेशेंट, यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस की जब हम बात कर रहे हैं, देन तीसरा टीबी का पेशेंट। अगर ये आ गया है तो प्लीज समझ लीजिए एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस से ज्यादा इट इज गोइंग टू बी पेपिलरी नेक्रोसिस। होना तो देखिए नेक्रोसिस है, किडनी तो मरेगी, पर ट्यूब्यूल मरेगा या फिर पेपिला मरेगा? इस केस में पेपिला मरेगा। सो पी लुक्स लाइक डी। सो हमेशा याद रखिए डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर आपका पेपिलरी नेक्रोसिस होगा। ओके, इमेजिंग आप देखेंगे तो कप एंड स्पिल अपीयरेंस मिलेगा आपका आईवी यूरोग्राम पे, ठीक है। देन डायलिसिस के क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं आपके वॉल्स, ठीक है ना, AEIOU। सो एसिडोसिस माने पीएच ऑफ लेस देन 7.1, इलेक्ट्रोलाइट्स, और जिसमें क्या बोलेंगे पोटेशियम का वैल्यू अगर मोर देन 6.5 चला जाए, या फिर आपने टॉक्सिस लिए हुए हो जैसे कि लिथियम, इथाइलिन ग्लाइकोल माने जो आपका अल्कोहल हो गया, या फिर ओवरलोड हो रखा है माने कि इतना फ्लूइड ओवरलोड हो गया कि डायूरेटिक्स पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है पेशेंट, या फिर यूरीमिया है ना, जो हमने बोला था कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एकेआई अगर हो गया, इंसेफेलोपैथी, पेरिकार्डाइटिस हो गया, सो आपको डायलिसिस ऐसे पेशेंट में स्टार्ट कर देना होता है। एट लास्ट समराइजिंग व्हाट आई हैव टॉट टू यू। सो अगर हम बात कर रहे हैं प्री रीनल एकेआई की,
तो उसमें मेन फीचर है वॉल्यूम डिप्लीशन या फिर डिहाइड्रेशन। यूरिन में सोडियम इज गोइंग टू बी लेस देन 20, यूरिन का ऑस्मोलैरिटी इज गोइंग टू बी मोर देन 500, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इज लेस देन 1% एंड कास्ट जो मिलेंगे आपको ब्लेंड कास्ट मिलेगा। शुद्ध शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं, इट इज गोइंग टू बी इट इज गोइंग टू बी डिहाइड्रेशन का पेशेंट, चाहे वो वॉमिट कर रहा हो, चाहे वो भाग रहा हो, मान लो डायरिया में पेशेंट हो, ठीक है, या फिर उसने फास्ट कर रहा हो बड़े टाइम से, या फिर एक मैराथन रनर हो, ऐसे सभी मूर्ख प्राणियों के अंदर आपको प्री रीनल काइंड ऑफ एक ही आएगा। अब ऑब्वियसली उसकी जो किडनी है वो बहुत ज्यादा लोड में है डिहाइड्रेशन की वजह से, सो यूरिन का ऑस्मोलैरिटी हाई मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड पेशाब होगा उसका, बट उसके अंदर सोडियम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो दौड़ रहा है, जो डिहाइड्रेट है, उसके अंदर तो ऑलरेडी सोडियम का लॉस है, तो उसके यूरिन में भी जो सोडियम होगा वो दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 20%। सो फ्रैक्शन एक्सक्रीशन जो है सोडियम का, दैट इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली रिड्यूस लेस देन 1%। ठीक। ऑन द अदर हैंड एटीएन, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की जब बात कर रहे हैं, माने किसी ने इस्चेमिक ड्रग ले रखी है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग ले रखी है, या फिर इस्चेमिक इंजरी हो गई है, उसके किडनी को गला घोट दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है दिस किडनी इज नॉट गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट। अगर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही है, तो जो हमने प्री रिनल में देखा उसका बिल्कुल उल्टा इसमें मिलेगा। माने सोडियम जो यूरिन में मिलेगा बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यूरिन अब कंजर्व, जो किडनी कंजर्व नहीं कर पा रही है सोडियम को, तो इट इज गोइंग टू सी लाइक मोर देन 40 का लेवल मिलेगा। ऑस्मोलैरिटी कम मिलेगा, नॉर्मल इज 350, तो 350 से कम मिलेगा। डाइल्यूट यूरिन मिलेगा इसमें आपको। देन फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इसमें ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगेन किडनी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है यूरिन को। एंड ऑब्वियसली मरे हुए टिश्यूज आएंगे, मरे हुए टिश्यूज का मतलब मडी ब्राउन, है ना, मौत का मंजर, मडी ब्राउन मरे हुए टिश्यूज आपको कास्ट में मिल जाएंगे। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की अगर हम बात करें, सो ड्रग रिलेटेड होगा। आपको पेशेंट कोई रैश की हिस्ट्री दे रहा होगा, फीवर की हिस्ट्री दे रहा होगा, आप ब्लड काउंट कराओगे, उसके अंदर इओसिनोफिलिया मिल जाएगा आपको। मोस्ट कॉमनली ये एक आपका रोमेटॉइड डिजीज का भी पेशेंट हो सकता है। इसमें यूरिन सोडियम कुछ भी हो सकता है, इसमें यूरिन ऑस्मोलैरिटी भी कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन भी कुछ भी हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको जब यूरिन का एग्जामिनेशन करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे, तो उसमें आपको स्टेराइल पाईयूरिया मिलेगा, मतलब के बैक्टीरिया नहीं मिलेगा पर डब्ल्यूबीसी मिलेगा, एंड साथ में मिलेगा आपको हाई इओसिनोफिल काउंट इन ब्लड एज वेल एज हाई इओसिनोफिल काउंट इन यूरिन। लास्ट में रैप्डायोमायोलिसिस की बात करेंगे, जो इसमें पेशेंट देगा हिस्ट्री ट्रॉमा की, सीजर की। आपके उसके ब्लड रिपोर्ट में देखेंगे 5000 से ज्यादा आपका क्रिएटिनिन काइनेज मिल जाएगा आपको। यूरिन का सोडियम हाई मिलेगा, ऑस्मोलैरिटी लेकिन लो मिलेगी, माने कि अगेन डाइल्यूट यूरिन होगा इसमें, एंड कास्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बट मडी ब्राउन आपको इसमें यूरिन मिल सकता है, काला टी कलर का इसमें यूरिन मिल सकता है। एंड माय फ्रेंड्स, दैट इज ऑल you need to know about AKI. Hope I was able to help you. Please take down these notes. क्वेश्चंस लगाइए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को तुरंत देखने के बाद में। एंड जो क्वेश्चंस में आपको कुछ लगता है कि एक्स्ट्रा है, या आपको कोई कुछ समझ में नहीं आया, उसको आप ऐड करिए। आप मेरे से भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, ऑल बेस्ट।